دیکھو دعا جو ہے نا، دعا اس میں اصل ہے انفرادی. اجتماعی دعا میرے لیے تو مانگنا بڑا ہی مشکل کام ہے. خیر مانگ لینی چاہیے کبھی کبھار، لوگوں کو سیکھنے کا موقع مل جاتا ہے. لیکن اجتماعی دعا کے موقع تو کبھی کبھار ہی آتے ہیں نا. آپ مجھے ایک بات بتاؤ، جب کسی سے قرضہ مانگنے کے لیے جاتے ہو، کسی ذاتی ضرورت سے لیے جاتے ہو تو کیا بھونپو ہاتھ میں لے کے جاتے ہو؟ اس کو بھونپو کہتے ہیں نا، وہ جو اسپیکر ہوتا ہے. یہ پوری قوم کو لے کے جاتے ہو، جا کے چھپڑ میں اس سے لجاجت کرتے ہو بیٹھ کے کہ یار تو حالات دیکھ رہے، غربت مہنگائی کہاں پہنچی ہوئی ہے یار، تھوڑا کچھ روکڑا شوکڑا دے دے. ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو دعا کا جو اللہ نے اصول بتایا ہے قرآن مجید میں، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو پکارو عاجزی کے ساتھ اور چپکے سے. تو دعائیں کرنا سیکھیں. مسئلہ سارا مسلمان کے ساتھ یہ ہے کہ اس کا ہر ایک کے ساتھ کنیکشن. جی بیٹا اچھا میں پڑھ لوں گا دعا کے لیے، ٹھیک ہے. مسئلہ مسلمان کے ساتھ یہ ہے کہ اس کا اللہ تعالیٰ سے کنیکشن کیا ہو گیا ہے؟ کمزور. اسی سے سارے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں. تو دیکھو آج کے اس بیان میں نا جو بات سیکھنے کی ہے، میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی، جو میں جتنی باتیں کرتا ہوں میں اس میں سب سے پہلے اپنے آپ کو خطاب کر رہا ہوں. میرا کبھی یہ دعویٰ نہیں ہے کہ جو باتیں میں کر رہا ہوں تو وہ مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، اور بھائی میں سب سے پہلے اس کا خود محتاج ہوں کہ اللہ مجھے عمل کی توفیق دے. اس لیے میرے یہ بیان نہیں ہوتے، یہ تکرار ہوتی ہے. مل بیٹھ کے کچھ نصیحت کی باتیں شیئر کر لیتے ہیں جو ہم سب بھولے ہوئے ہیں، مجھ سمیت. آپ کہہ سکتے ہیں جب مل بیٹھ کے باتیں شیئر کرتے ہیں تو پھر نیچے بیٹھ کے گپ شپ لگائیں، اوپر کیوں بیٹھے ہوئے؟ تو وہ اس لیے بیٹھا ہوں اوپر کہ نظر آ جاؤں سب کو میں آرام سے. نیچے بیٹھوں گا تو نظر نہیں آؤں گا، اس لیے مجبوری میں اوپر بیٹھا ہوں. میں سمجھتے ہیں اس لیے نہیں بیٹھا کہ میں نصیحت کرنے والا ہوں تو میں کو بہت نیک آدمی ہوں، تو میں چونکہ بڑا آدمی ہوں تو میرا مقام بہت عظیم انسان ہوں. میں عظیم تو قیامت میں پتہ چلے گا بھائی، عظیم کون ہے اور وسیم کون ہے. یہ کب پتہ چلے گا؟ قیامت میں پتہ چلے گا عظیم کون ہے اور وسیم کون ہے. دنیا میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے آج؟ جو ڈپریشن، اسٹریس، بیماریاں، پریشانیاں، ناکامیاں اور ٹینشنیں، ان کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا اللہ سے کنیکشن کیا ہو گیا ہے؟ کمزور. بعض لوگوں کا تو بالکل ہی ختم ہو گیا ہے. اور اللہ نے جو ہمیں عبادتیں دی ہیں نا، تراویح کی عبادت، رمضان کی عبادت، ذکر اذکار کی عبادت، حج کی عبادت، عمرے کی عبادت، دعا کی عبادت، صدقات و خیرات کی عبادت، ان سب کا مقصد اللہ سے تعلق پیدا کرنا ہے. آج سب کچھ ہو رہا ہے مگر اللہ سے تعلق نہیں ہو رہا. یہ بڑا مسئلہ ہے. دیکھو ہمارے ایک دوست تھے، ان کے یہاں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کوئی واقعہ ہوا گھر میں خودکشی کا. بے روزگاری کی وجہ سے کسی نوجوان نے خودکشی کی. اللہ تعالیٰ اس نوجوان کی مغفرت کرے. بہرحال کبیرہ گناہ ہے لیکن دعائیں مغفرت تو کرنی چاہیے. مجھے جب اطلاع ملی میں نے ان کے والدین کو سمجھایا. وہ بہت ٹینشن میں آئے نا ماں باپ کہ ہم نے بھی تانے دیے تھے اس کو بے روزگاری کے، تو اس کی ٹینشن اس نے زیادہ لے لی ہے. میں نے کہا یہ ٹینشن زیادہ لینے والی بات بالکل غلط. بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی ضرورتوں کے دائرے بہت زیادہ وسیع کر لیے ہیں کیونکہ ہمارا اللہ سے کنیکشن نہیں. اب چاہتے ہیں کہ سب کی توندیں فل بھریں، پیٹ بھریں، گھر بڑے بڑے ہوں، گاڑیاں سب کے پاس ہوں، بینک بیلنس سب کے بھرے ہوئے ہوں، بالکل عیش کی زندگی ہو، کوئی ٹینشن نہ ہو. اللہ تو ہے ہی نہیں نا بیچ میں. اللہ بیچ میں ہے ہی نہیں کہ اصل کامیابی ہے کہ خدا خوش ہو ہم سے. وہ تو ہے ہی نہیں، وہ تو مقصد ہی نہیں ہے. تو جب دولت کو باپ بنا کے، شہرت، عزت، خواہشات کو باپ بناؤ گے تو میرے بھائی کھمبوں سے ہی چپکو گے. پھر جا کے کوئی کھمبے سے چپکے گا، کوئی زہر پیے گا، کوئی نہیں بھی پیے گا نا تو ڈپریشن سے مرے گا. وہ برین ہیمریج سے مرے گا ڈپریشن میں. صحابہ کے پاس جو ہے نا 24 گھنٹے میں ایسے حالات بھی آئے ہیں کہ 24 گھنٹے میں ایک کھجور ہے کھانے کے لیے. وہ تو ٹینشن اور ڈپریشن کی گولیاں بھی نہیں کھا رہے تھے اس وقت. ایسے حالات آئے نا جنگوں میں کہ 24 گھنٹے میں کیا کھایا. ایک صحابی نے جب بتایا نا کہ ہم 24 گھنٹے میں پتہ نہیں 2-3 کھجوریں کھاتے تھے. لوگوں نے کہا اس میں گزارا کیسے ہوتا تھا؟ انہوں نے کہا ہم سوچتے تھے جب یہ بھی نہیں ملتی تھی، جب ایک کھجور ملتی تھی ہم ان دنوں کو یاد کر کے 2 کھجوروں پہ خوش ہوتے تھے. لوگوں نے کہا بھائی جب ایک کھجور ملتی تھی اس پہ کیسے ٹینشن ختم ہوتی تھی؟ انہوں نے کہا ہم اس دن کو یاد کرتے تھے جب کھجوروں کی گٹلیاں چوسا کرتے تھے، کھجور بھی کھانے کو نہیں ملتی تھی. آج کباب پراٹھے کھا کے کھمبے پہ لٹکتا ہے جا کے. ٹینشن سے جو مرتا ہے نا خودکشی کرتا ہے. پہلے پیٹ بھرے گا، کھائے گا، نرم بستر پہ لیٹے گا، رات اس نے نرم بستروں پہ گزاری ہوگی. میرے بھائی اللہ سے تعلق پیدا کرنا صرف آخرت کے لیے ضروری نہیں ہے، دنیا کے لیے پہلے ضروری ہے. دنیا آپ کی اچھی نہیں ہو سکتی جب تک اللہ سے تعلق بحال نہیں ہوتا. ہم نے سورہ یوسف پوری پڑھ لی. یعقوب علیہ السلام کی ساری زندگی ٹینشنوں میں گزری ہے. ان ٹینشنوں میں ساری زندگی کیا کرتے رہے ہیں؟ صرف دعائیں مانگتے رہے ہیں. حالانکہ دعائیں بظاہر قبول ہوتی ہوئی نظر بولو نہیں آ رہی. دعائیں قبول ہی نہیں ہو رہی ہیں بظاہر. یہ کیسی قبولیت ہے بھائی دعا کی؟ جب اللہ نے ایک خوبصورت بیٹا دیا، اس کو خواب آیا، خواب سے لگا کہ یہ پیغمبر بنے گا، تو یعقوب علیہ السلام نے اسی وقت سے دعائیں مانگنا شروع کر دی. اے اللہ اس کو زمین کا، لوگوں کا امام بنا. جو تو نے نعمت
की है ना मेरे दादा इब्राहिम पर, ऐ अल्लाह वो नेमत मुकम्मल कर मेरे बेटे यूसुफ के जरिए, इसको भी नबी बना। उस वक्त से दुआएं मांगी होंगी कि नहीं मांगी होंगी? नजरे बस से बचने के लिए भी दुआएं मांगी होंगी। बहुत खूबसूरत बेटा था, ऐ अल्लाह इसे हासिदों के हसद से बचा, मांगी होंगी कि नहीं मांगी होंगी? भाई बोलो क्या हो गया? ये दुआ भी मांगी, ऐ अल्लाह इसे हासिदों के हसद से बचा, इतना खूबसूरत बेटा है ये, इतना नेक बच्चा है ये। लेकिन सारे काम बज़ाहिर क्या हो रहे हैं? उल्टे। हसद भी खा रही है, भाइयों ने उठा के कुएं में डाल दिया और बाप की नजरों से ओझल। तो क्या कहा है याकूब अलैहिस्सलाम ने कि मैं खुदकुशी करूंगा, मेरा बेटा कहाँ है भाई? तुमने जो कुर्ता लाके दिया मुझे जिसपे झूठा खून लगा हुआ है, ये झूठ बोल रहे हो। और फिर मुसलसल डिप्रेशन टेंशन में जाते जाते बिल आखिर खुदा न ख्वास्ता कोई ख्याल आया उनके दिल में खुदकुशी का। वो क्या कर रहे हैं भाई? फसब्रुन जमील, मैं क्या करूंगा भाई? सब्र, क्योंकि मेरे पास तो कोई तहकीक का जरिया भी नहीं है कि तुम सच कह रहे हो कि झूठ कह रहे हो। दुआ बज़ाहिर कबूल होने के बजाय क्या हो रही है? रद्द हो रही है। कोई मायूसी की बात नहीं की याकूब अलैहिस्सलाम ने, ऐ अल्लाह मैं तुझसे क्या मांग रहा था और तू मेरे साथ क्या कर रहा है? तू मुझे टेंशन दे रहा है, मुझसे क्या गुनाह हुआ है? और ऐसा भी नहीं किया याकूब अलैहिस्सलाम ने रूहानी इलाज वालों से राब्ता किया हो, बेशरम लोगों से, क्योंकि ये बड़े बेशरम हैं। अच्छे अच्छे घर जादू टोने के नाम पे इन बेशर्मों ने तबाह किए हैं। जादू है, टोना है, फलाना है, टिमकाना है, जो असल काम करने का है उससे ये क्या कर देते हैं? आपको हटा देते हैं। याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह से क्या कर रहे हैं? दुआएं मांग रहे। वो दुआ कैसे कबूल हो रही है? यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र में बजाय कुएं से निकलने के मिस्र के बाजारों में, बोल लो ना क्या हो गया, फरोख्त हो रहे हैं। फिर दूसरा बेटा भी गया थोड़े दिनों के बाद, एक मिलने के बजाय बिन्यामीन भी चला गया। रो रहे हैं, जो गैर इख्तियारी चीज है, रो रहे हैं, गैर इख्तियारी है ना। तो बच्चों ने क्या कहा कि आप अभी तक यूसुफ को याद करके रो रहे हैं? क्या फरमाया? इन्नमा अश्कु बसी व हुज़्नी इलल्लाह, मैं अपने गम किसके सामने बयान करता हूँ? अल्लाह के सामने। अल्लाह के सामने तो बयान किया जाएगा गम। व अअलमु मिनल्लाहि मा ला तअलमून, मैं अल्लाह के बारे में वो कुछ जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। नाकामियों के नक्शे में कामयाब करना किसका काम है? अल्लाह का काम। मायूस नहीं हूँ, जो हो रहा है मेरे हक में बेहतर हो रहा है, अगरचे मुझे समझ में नहीं आ रहा। कुछ तसव्वुर नहीं था ना बादशाह बना के अल्लाह मिलाएगा। उनके मसाइल खुदा की कसम हमारे मसाइल से कई गुना ज्यादा थे। मैं मानता हूँ बेरोजगारी है, महंगाई है, फिर भी पराठे खा रहे हैं लोग इस महंगाई में भी, फिर भी ज्यादा खा के मर रहे हैं, कम खा के नहीं मर रहे लोग। और जो कम खाने वाले हैं, जो वाकई गरीब हैं, उनके ये मसाइल भी नहीं है, उन्हें सब्र आ रहा है। ज्यादातर ऐश परस लोग हैं जिनको सब्र नहीं आता। तो ये सारे मसाइल किसकी वजह से मेरे भाई? अल्लाह से ताल्लुक ना होने की वजह से। हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह ने बड़ी प्यारी बात लिखी। एक मुरीद ने ना उनको लिख के दिया कि मुझसे गुनाह नहीं छूटता, गुनाह करता हूँ तौबा करता हूँ, गुनाह करता हूँ तौबा कर, छूट नहीं रहा। हजरत तौबा कर करके थक गया। उन्होंने फरमाया करते रहो, इस तौबा की वजह से ताल्लुक तो बहाल है ना अल्लाह का। चलो मोहब्बत का ताल्लुक नहीं, माजरत का ताल्लुक तो है, एक्सक्यूज का ताल्लुक तो है। नहीं आई मेरा ख्याल है बात समझ में। एक ताल्लुक होता है इताअत का ताल्लुक, फर्माबरदारी का ताल्लुक, असल तो ये ताल्लुक है कि आप अल्लाह के फर्माबरदार बन के रहें। और एक ताल्लुक होता है फर्माबरदार नहीं है लेकिन माजरत कर रहा है बार बार, ताल्लुक तो है ना। और एक है कि ताल्लुक ही नहीं है, ना इताअत कर रहा है ना अल्लाह से माफिया मांग रहा है। आज मुसलमान का बहुत बड़ा मसला क्या है कि अल्लाह को उसने अपनी डिक्शनरी से निकाला, अब चंद रसूमात में तो अल्लाह रह गया है, चंद रसूमात में, लेकिन ऐसा मजबूत ताल्लुक नहीं है कि ये अल्लाह आपको डिप्रेशन से निजात दे दे, ये अल्लाह आपकी टेंशनें दूर कर। देखो जब आप टेंशन में होते हो, कोई महबूब दोस्त मिलके आपके साथ टेंशन शेयर कर ले तो आपको खुशी होती है ना, आप कहते हैं यार तुम्हारी वजह से मेरा गम क्या हो गया है, हल्का हो गया है। तो अल्लाह की वजह से हम हल्का क्यों नहीं हो रहा? इसका मतलब अल्लाह दोस्त ही नहीं है, ताल्लुक ही नहीं है अल्लाह से। तो खूब समझ लो, रमजान अल्लाह ने क्यों दिया? अल्लाह से ताल्लुक पैदा करने के लिए। जितनी इबादतें हैं भाई तुम अल्लाह से कोई दोस्ती लगाओ, राज़ो न्याज किया करो अल्लाह ताला से। तो अल्लाह से जो दोस्ती है ना और ताल्लुक है, उसमें सबसे ज्यादा पावरफुल चीज क्या है? वो है दुआ। आज मैंने देखा है लोग नमाज पढ़ लेते हैं किसी न किसी दर्जे में, तिलावत कर लेते हैं किसी न किसी दर्जे में, सदका तो खैरात भी टूटे वैसे तो नहीं हो रहे जैसे होने चाहिए, लेकिन चलो टूटे फूटे सदका तो खैरात भी हो जाते हैं, उम्रा भी कर लेते हैं, पैसा अल्लाह दे दे, हज भी कर लेते हैं। अल्लाह से मांगने का शौक खत्म, बस एक फॉर्मेलिटी पूरी होती है। इज्तिमाई दुआओं में, इज्तिमाई दुआएं होती है ना, उसमें आ रहे हैं, अब तो बैनर भी लग रहे होते हैं हमारे यहाँ, रो रो के दुआएं मांगी जाएंगी। ये भी एक एंटरटेनमेंट का जरिया बन गई ये चीज। मैं किसी की नीयत पे शुबा नहीं कर रहा, टीवी में प्रोग्राम देख लो पहले, कई अब पता नहीं आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, बाकायदा ठिये लग रहे हैं, ठीक है ना, और पूरा एक एंटरटेनमेंट हो रही। पूरे साल खुदा के सामने कभी आंसू बहाने का मौका की तौफीक नहीं होती, गिड़गड़ाने की तौफीक नहीं होती, बहुत बड़ी दिल के उजड़ने की दलील है। तो जितने यहाँ पर लोग बयान सुनने आए हुए हैं, एतकाफ में आए हुए हैं, नीयत करें कि इस दिल जिसमें वहशत पैदा हो चुकी है अल्लाह से,
दिल की इस वहशत को खत्म करना है। मैं जब हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह से बैत होने के लिए गया तो हजरत ने हमें कुछ मामूलात बताए। वो मामूलात आपने नहीं करने हैं। आप कहें वो कौन से मामूलात हैं, वो मैं भी बताता हूँ, लेकिन वो आपके करने के नहीं है। उसकी वजह भी बताऊंगा क्यों नहीं है। तो हजरत ने फरमाया कि रात को किसी भी वक्त किबला रुख होके बैठ जाया करें, जैसे बैठना सहूलत से मुमकिन हो, यानी जिस पोजीशन में बैठने में सहूलत। फिर क्या करना है, 10 दफा दुरूद शरीफ पढ़ना है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात को सोच के, फिर 10 दफा इस्तिगफार पढ़ना है अपने गुनाहों को याद करके, और फिर एक मुराकबा करना है। मुराकबा क्या कि अगर आप किसी जगह खूबसूरत बागीचा लगाना चाहते हैं, खूबसूरत फूल लगाना चाहते हैं, फलदार दरख्त लगाना चाहते हैं, तो पहले वहां से झाड़ियां साफ करनी पड़ेंगी कि नहीं करनी पड़ेंगी? बोलो ना। खवातीन खूब गौर से बयान सुने। आजकल खवातीन में भी घरों में मामूलात का रिवाज खत्म। मोबाइल आ गया है हाथ में। हम अपनी दादियों नानियों को देखते थे, मुसल्ले से मोहब्बत थी उनको। आज हम असर के बाद ना बात कर रहे थे कि फिटनेस, फिजिकल फिटनेस की ना, मुझसे अक्सर लोग आके पूछते ना आप इतने बारीक क्यों हैं? ठीक है, तो मैं तो कोई खास कुछ ना कोई बहुत ज्यादा एक्सरसाइजेज हैं, पराठे पराठे पड़ता रहता हूँ। तो मैं बता रहा था कि पहले जमाने के लोग तो कोई ट्रेनिंग नहीं थी, कोई फिजिकल फिटनेस की चीजें नहीं थी, फिर भी फिट थे। तो मुझे अपनी दादी याद आ रही थी। अब आज खवातीन वॉकिंग भी करती हैं, जॉगिंग भी करती हैं, जिम भी जा रही। मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, पर्दे के साथ किया जा सकता है, क्योंकि घर में और तो कुछ हो नहीं रहा, तो फिर तो खा बड़ी स्पीड से रही हैं, तो फिर वही होगा ना जो मर्दों के साथ हो रहा है, जो औरतों के साथ हो रहा है, पटपटा के धमाके के साथ इत्तला आ जाती है। एक दिन आज ये दुनिया से चले गए। लेकिन हम जो पुरानी औरतों को देखते हैं, अपनी दादियों नानियों को, तो उन्होंने तो एक एक तख्त पे पूरी पूरी उम्रें गुजार दी। मैं अपनी दादी को मैंने मेरा ख्याल है 20 साल देखा है, 20 साल अपनी दादी के साथ गुजारे। तो 20 साल से मैं उनको तख्त पे ही देख रहा था। एक तख्त था, शायद उनको जहेज में 1903 में मिला हो कहीं, या 1904-05 में कहीं जाके मिला हो। उसके ऊपर एक चादर थी, उसके ऊपर एक दरी थी, उसके ऊपर एक और चादर थी, उसके ऊपर एक और दरी थी। एक दरी के नीचे केला रखा हुआ होता था, दूसरी दरी के नीचे कोई पैसे वैसे रखे हुए होते थे। उनके मुख्तलिफ चीजें थी। पान भी खाती थी। वो था सरोता होता था ना, तो ये लफ्ज डिक्शनरी से गायब हो रहे हैं। सरोता नहीं होता वो जो काटने वाला, फिर छोटा सा पान होता था, तंबाकू लगाया और रख लिया। उसी तख्त पे मैंने उनको देखा। 20 साल उन्हें गुजारे और 85-90 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ है। ना कोई वॉकिंग थी, ना कोई जॉगिंग थी, नमाज, तस्बीहात, थोड़ा बहुत गीबतों में टाइम गुजरता था, अल्लाह माफ फरमाए, वो गलत था। ज्यादा टाइम किसमें गुजरता था? नमाज में। रोजे रखती थी शवाल के, रमजान में कई कुरान खत्म हो जाते थे, हालांकि नजर कमजोर हो गई थी, इतने मोटे मोटे चश्मे लगा के कुरान पढ़े जा रहे हैं। मैं हैरान हूं, आजकल उम्रें कितनी छोटी हो गई हैं। बात क्या है भाई, किसी ना किसी दर्जे में अल्लाह से ताल्लुक था, टेंशन नहीं थी, डिप्रेशन नहीं थी। जो ये है उनकी डिप्रेशन है, अल्लाह से दुआएं मांग के खत्म। उन्होंने बहुत सारे गम भी देखे, जवान मौतें देखी हैं। मुझे दादी ने बताया करती, पता नहीं कितने मेरे बच्चे पैदा होके फौत हुए हैं। आज औरत का एक बच्चा फौत हो जाए ना, इतना शोर शराबा, इतना रोना पीटना चीखना के शौहर का दिल करता है कि वो भी फौत हो जाए। इतनी टेंशन होती है उसको। गमों का बर्दाश्त करना और बर्दाश्त करने की ताकत और कुव्वत खत्म, क्योंकि अल्लाह से ताल्लुक क्या हो गया है, खत्म। पहले बड़े आराम से एक जुमला, भाई माँ कद्दर अल्लाह, ये दिया, ये औलाद दी अल्लाह ने, लेने वाला कौन है? वो भी अल्लाह, उसकी मर्जी ले ली। थोड़ा बहुत रोए, उसके बाद नॉर्मल। तो वो मैं वाकया सुना रहा था ना, हमारे हजरत फरमाया करते थे कि ये सोचा करें, नहीं 10 दफा दुरूद शरीफ पढ़ा, 10 दफा इस्तिगफार, उसके बाद थोड़ी देर मुराकबा। मुराकबा वो नहीं जो मुराकबे सेंटर खुले हुए हैं, तो टोपी ड्रामा पता नहीं क्या क्या घुमा रहे होते हैं, कोई कश्फ करामत वगैरह चीजें दिखा रहे होते हैं। मुराकबा का मतलब इसका इस्तेहजार करें। एक मिसाल सोचें कि जब किसान को कोई खूबसूरत बागीचा लगाना होता है तो पहले जमीन से झाड़ियां और कांटेदार पौधे साफ करता है। ऐसे ही नहीं लाके काश्तकारी कर दी जाती अच्छी चीजों के लिए। झाड़ियां और खारदार पौधे लगाने के लिए ट्रैक्टर चलाने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद उग जाते हैं। सेब, अनार, अंगूर, नाशपाती, गंदम, चावल, ये चीजें लगाने के लिए क्या चाहिए? जल्दी जल्दी में मुख्तसर बयान करने का मेरा इरादा है, अगर आप मेरा साथ दें ताकि बात बैठ जाए दिमाग के अंदर। तो ये चीजें लगाने के लिए क्या चाहिए भाई? पहले झाड़ियां साफ की जाएंगी, उसके बाद फूल लगते हैं। तो हजरत फरमाया करते थे, ये सोचा करें कि मेरे दिल में अल्लाह की मोहब्बत के फूल उस वक्त तक नहीं लगेंगे जब तक दुनिया की मोहब्बत की खारदार झाड़ियां साफ नहीं होंगी। गाड़ियों की मोहब्बत, पैसे की मोहब्बत, शोहरत की मोहब्बत, अय्याशी की मोहब्बत, मेरा बहरिया टाउन में प्लॉट क्यों नहीं है, मेरे पास इतना पैसा क्यों नहीं है, मैं बहुत अच्छे स्कूल में क्यों नहीं पढ़ पा रहा, मैं बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं पढ़ पा रहा, मैं अभी तक अंडा मोड़ पे क्यों बैठा हुआ हूँ, डिफेंस में घर क्यों नहीं है मेरा। ये मुर्दार है भाई, बेवफा चीजें जिनसे आपने दिल लगाया हुआ है, रूठने वाली चीजें हैं। जो इतने बड़े बड़े तरक्की करके कहां कहां पहुंच गए, थोड़े दिन में कहां जाते हैं वो। कब्र के अंदर कीड़े खा रहे होते हैं इनकी लाशों को, जाके देखा करो ना, जाके देख लिया करो, मरे हुए होते हैं, सड़े हुए, बू आ रही होती है उनके अंदर से।
हमारे एक जानने वाले, उन्होंने बताया कि आपसे एक सेठ साहब मुलाकात करना चाहते हैं। बहुत बड़े सेठ, वो बिल्डर था, बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा बिल्डर। तो उन्होंने मुझे 2-3 दफा कहा आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा मिलने, कहते नहीं भाई, वो असल में उनकी सिक्योरिटी बहुत है, तो वो क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा है तो सिक्योरिटी भी उसी हिसाब से, जितना ज्यादा पैसा आता है ना, पैसे का ग्राफ जितना ऊपर जाता है, मौत का खतरा भी उसी हिसाब से उतना। इज्जत और शोहरत, ये 2 चीजें ऐसी जितनी बढ़ेंगी मौत का खतरा उतना ही बढ़ेगा। जो गरीब आदमी और मशहूर भी ना हो, वो ट्रक के नीचे आगे भी नहीं मरता, मैंने अक्सर देखा, फिर भी बच जाता है फिर भी कहीं ना कहीं से बच ही जाएगा वो। जितनी इज्जत बढ़ती चली जाएगी ना आपकी, और जितना पैसा आता चला जाएगा, मौत का चांस उसी हिसाब से, क्योंकि हासिदीन बढ़ते चले जाते हैं ना। तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई वो इतना पैसे वाला बिल्डर है, वो ये फलाना प्रोजेक्ट उसका चल रहा है, फलाना प्रोजेक्ट उसका चल रहा है, तो मुफ्ती साहब जाना पड़ेगा, वो बहुत अकीदतमंद है आपका, तो जाना पड़ेगा। एक्चुअली वो बड़ा प्रोटोकॉल होता है इन लोगों का। मैंने कहा चलो, आप इतना इसरार कर रहे हैं और आपके ताल्लुक है मेरा, तो मैं तो आपको जानता हूँ, उसको तो नहीं जानता, आप सिफारिश करने तो मिल लूंगा। थोड़े दिन में उन्होंने मुझे बताया कि भाई उसका इंतकाल हो गया। क्या हो गया? बोलो। इंतकाल। मैंने कहा भाई कल परसों तो मुलाकात की बातें हो रही थी। उन्होंने कहा बस वो हार्ट अटैक हुआ और दारे फानी से हमेशा के लिए चले। अब इतना बड़ा आदमी, हार्ट अटैक इतने आराम से होता नहीं है, ये हम गरीबों वाले हिसाब नहीं होते। इनके कोलेस्ट्रॉल लेवल, लिपिड प्रोफाइल, ब्लड प्रेशर, मशीनें इनके साथ साथ चलती हैं। गरीब आदमी को तो जब रग फटती है तो पता चलता है, 6 महीने बाद पता चलता है कि हुआ क्या था इसके साथ, क्योंकि कोई टेस्ट, कोई रिपोर्ट है उसके पास, बोलो ना, होती नहीं है। गुटके खा खा के मुंह के कैंसर को भी चलाते रहते हैं कई साल तक। ये गुटके भी गैर मयारी है ना इनके। तो ये जो इतना मालदार आदमी, अचानक से उसकी मौत हो गई, तो आपका क्या ख्याल है, ये अचानक हो गई होगी? भाई इनको तो रिपोर्टें इनके पास होती है, शुगर चेक करने की मशीनें हर वक्त, 2-4 डॉक्टर हर वक्त। फिर भी अल्लाह बताता है जब मौत का वक्त आता है, सेकंडों के अंदर मौत देता हूं मैं अक्सर एक मिसाल में, बयान में एक मिसाल देता हूं। देखो जितने भी पैगंबर दुनिया से गए, से हमें यही पता चलता है कि जैसे नॉर्मल किसी की मौत होती है, बीमार होते हैं, बिस्तर पे जाते हैं, कुछ वक्त के बाद उनकी डेथ हो जाती है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी ऐसा हुआ। आपको बुखार हुआ, चंद दिन बुखार चला, फिर उसी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई। लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात का वाकया बड़ा अजीब है। सुलेमान अलैहिस्सलाम जो थे ना, उनकी वफात कैसे हुई है? अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को इतनी बड़ी हुकूमत दी, तख्त उनके ताबे बना दिया, हवाएं उनके ताबे कर दी, 100 बीवियां माजरत के साथ। इतना जाहिर है जब बहुत पैसा, सेहत भी, महलात भी, मलका सबा मुसलमान हो गई आके, इतनी बड़ी हुकूमत मिल गई बैठे बैठे, इतने वसाइल और जिन्नात पर रोक सुलेमान अलैहिस्सलाम। और कुरान के अल्फाज क्या है? फलम्मा क़ज़यना अलैहिल मौत, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ऐसे लाठी यूं रख के बैठे हुए हैं और तामीराती काम करवा रहे हैं। ये जो इहराम मिस्र है ना, कोई भरोसा नहीं है जिन्नात ने बनाया, क्योंकि ये अजाइब दुनिया का एक उजूबा इसी वजह से है कि साइंसदान और माहिरीन हैरान है कि ये बगैर जोड़ के इतनी बड़ी बड़ी ईंटें कौन सी क्रेनों ने लाके यहाँ रखी हैं। तो ऐन मुमकिन है जिन्नात ने उठा के पहाड़ों पे रख दी हूं, तो कोई चीज किसी से ना उठ रही हो ना, वो एक हाथ, चलो यार फिर बयान मेरा हट जाता है, पूरा जो टॉपिक चेंज हो जाता है। अच्छा, तो लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत कैसे हुई है? लाठी जमीन पे और ऐसे रोप के साथ कुर्सी से टेक लगा के बैठे हुए अपनी निगरानी में काम करवा रहे हैं। मजदूर लगे हुए हैं टेंशन में, और जिन्नात भी टेंशन में ना, मेहनत मजदूरी का काम कर रहे हैं। कुरान कहता है फलम्मा क़ज़यना अलैहिल मौत, हमने वहीं बैठे बैठे सुलेमान की रूह को कब्ज कर लिया। अंबिया के साथ मामला ये होता है कि मौत के बाद पैगंबरों का जिस्म खराब नहीं होता, ना उनके जिस्म में जर्रा बराबर भी कोई तब्दीली आती है। बिल्कुल मौत के बाद ऐसे लगते हैं जैसे जिंदा हैं, कोई उनके चेहरे पे तब्दीली नहीं आती। हजारों साल गुजर जाएं, लाखों साल गुजर जाएं, अल्लाह ने पैगंबरों के जिस्मों पे ना, मिट्टी पे पैगंबरों के जिस्मों को हराम कर दिया है। तो अब सुलेमान सलाम ऐसे बैठे हुए हैं और आपकी मौत वाक़ई हो गई। जिन्नात लगे हुए हैं कि वो समझ रहे हैं कि ये क्या है, जिंदा है। कुरान कहता है कि दीमक ने उनकी लाठी को खाना शुरू किया जमीन में। दाब्बतुल अर्दी ताकुलु मिन साता, वो जमीन का कीड़ा जो था ना, वो खाते खाते जब वो बैलेंस आउट हुए तो सुलेमान सलाम धड़ाम से जमीन पे गिरे हैं। तबय्यनतिल जिन, जिन्नात को पता चला, ओ भाई ये क्या हो गया। अब सवाल पैदा होता है, ए अल्लाह, तेरे इतने महबूब पैगंबर जिनकी तू इतनी तारीफें कर रहा है और तूने उनको दुनिया में ऐसी हुकूमत दी, कुरान कहता है कि ना उनसे पहले ऐसी हुकूमत किसी को मिली, ना उनके बाद मिलेगी ऐसी हुकूमत। इतने वसाइल, इतनी दौलत, इतनी पावरफुल रियासत, इतने वसाइल, 100 बीवियां किसी को मिल सकती हैं? अवेलेबल ही नहीं है मार्केट में। मिल सकती हैं क्या? है भाई, लोग एक एक के लिए कवारे छड़े छाट तरसते फिर रहे हैं बेचारे, और मेरा खून पीते आके कोई रिश्ता बता दे। तो मैं कहता हूं या तो रिश्ता आएगा, नहीं तो सब्र करो, फिर फरिश्ता आएगा। दोनों में से एक काम लाजमी होगा। तो जब फरिश्ता आएगा तो फिर जन्नत की हूरों से मिला देगा, फिर वहां लाइफ को एंजॉय करना, ज्यादा टेंशन मत लो। तो ऐसा किया क्यों अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ? क्या हिकमत थी इसमें? भाई अल्लाह ये बताना चाहता है कि ठीक है, सुलेमान को मैंने खुश होके दुनिया दी है ना,
लेकिन मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि ये दुनिया में किसी को नाराज होके दूं या खुश होके दूं, छीनने में चंद सेकंड भी नहीं लगते हैं। असल आखिरत है, जब सुलेमान को दुनिया इतनी दे दी अल्लाह ने और चंद सेकंड में पूरी दुनिया एक दम में वापस ले ली, तो मैं और आप किस खेत की मूली हैं? हम समझे जी मैंने अपना घर बनाया, अपना खुद मैंने दरवाजा लगाया इसमें, अब मैं किराए के घर पे नहीं रहता, अब ये मीटर भी मेरे नाम का है। इस पे इतरा रहे हैं आजकल लोग ना, मेरा अपना घर है कि किराए वराए पे नहीं रहते हम, मेरी अपनी गाड़ी है और रक्षा वाला मेरा रक्षा है, सिर्फ तुम, उसके पीछे लिखा होता है ना फखर से, और उस रक्षे पे उसको इतना फखर है, चप्पल लटकाई हुई है कि नजर ना लगे इसको। और भाई ट्रक को नजर लगी थी तो ये रक्षा बना था, अब इसको क्या मजीद क्या नजर लगेगी? तो मेरा घर, मेरा बंगला, मेरी गाड़ी, हर आदमी इसी बेवकूफ इसी चक्कर में लगा हुआ है। और भाई हमारी जरूरत 2 वक्त की रोटी है भाई, 2 वक्त की रोटी मिल गई, जिस्म किसी बड़ी बीमारी से महफूज है। इसके बाद अगर आप टेंशन ले रहे हो ना दुनिया की, तो ये आपकी खोपड़ी का फॉल्ट है, ये इसकी अलामत नहीं है कि अल्लाह की तरफ से आप पर मुसीबतें आ रही हैं। मुसीबतें कहाँ आ रही हैं? सुबह भी खाने को मिलता है, शाम को भी खाने को मिलता है। लोग कहते हैं खाली खाना ही तो जरूरत नहीं है, झूठ बोलते हैं लोग, सिर्फ खाना ही जरूरत है हमारी, बाकी सारी आपकी बनाई हुई जरूरतें हैं। जब भी ये बात करो ना, लोग कहते हैं मौलवियों को देखो, सिर्फ खाना ही थोड़ी जरूरत है, सिर्फ रात गुजारना ही थोड़ी जरूरत है। तो क्या जरूरत? मुसाफिर को तो खाना चाहिए और सफर में टाइम पास करने के लिए अच्छी सीट चाहिए ना, कि उसमें आराम से सो सकूं, कमर सीधी कर सकूं। अब इकोनॉमी क्लास में आप कमर सीधी नहीं कर सकते आप, जब तक बर्थ का इंतजाम ना हो, लेकिन उसमें भी लोग कर लेते हैं। आप इकोनॉमी क्लास में ट्रेन में बैठो, चादरें लगा के सो रहे होते हैं, उसमें झूले भी मिल रहे होते हैं, तो जरूरत का खुद ही इंतजाम कर लेते हैं ना। तो भाई हमें भी रात को सोने के लिए कोई सूटेबल जगह मिल जाए और सुबह और शाम हमारा पेट किसी तरीके से पूरा ना भी भरे, 1/3 भी भर जाए ना, जो जरूरी है, बस बहुत है। उसके आगे सारी गरीबियां हैं, उन गरीबियों के मिलने पे खुश हुआ करो, लेकिन ना मिलने पे टेंशन ना लिया करो। ना मिलने पे अगर टेंशन हो रही है तो ये दुनिया मुर्दार के आशिक होने की अलामत है। और जिस दिल में दुनिया मुर्दार की मोहब्बत आएगी, अल्लाह की मोहब्बत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये 2 मोहब्बतें एक दिल में जमा नहीं हो सकती। तो इस गंद को पहले दिल से निकालना पड़ेगा, जेब से नहीं निकालो, दुनिया को दिल से निकालो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? जेब से का मतलब है सब कुछ लुटा दिया जाके, ना 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 ना, दिल से निकालो। जैसे जब आप सफर करते हो ना ट्रेन में या बस में, तो दिल में उस ट्रेन और बस की मोहब्बत नहीं होती, लेकिन उसको इस्तेमाल बहरहाल कर रहे होते हो। आपके बारे सहूलत की चीज है यार, पैसे ज्यादा होंगे तो जहाज में चला जाएगा आदमी, मोहब्बत थोड़ी करता है कि इतना अच्छा जहाज है तो मैंने यहीं बैठे रहना है, मुझे उठना ही नहीं यहाँ से। तो मैं वो बता रहा था, हमारे हज़रत क्या फरमाया करते थे कि जब बैठो तो 10 दफा इस्तिग़फ़ार, गुनाहों की माफी, 10 दफा दुरूद शरीफ, फिर क्या करना है? ये बहुत अहम इसमें सबक है, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि क्या ये हमें नसीहत करते थे। फिर क्या करना है? ये मुराक़बा करना है कि जब तक किसी बागीचे से झाड़ियों को साफ न किया जाए, फूल बूटे उसमें पैदा नहीं होते, तो जब तक दिल में दुनिया के जो गटर और दुनिया के मोहब्बत के जो गटर उबल, इसको गटर ही कहा करो, दुनिया मुर्दार की मोहब्बत के क्या ये गटर है। दुनिया मुर्दार की मोहब्बत के गटर ये जब तक बंद नहीं होंगे, अल्लाह की मोहब्बत के चश्मे नहीं फूटेंगे। एक ही सुराख से गटर का पानी भी निकल रहा हो और चश्मा भी निकल रहा हो, कभी देखा आपने? बोलो ना क्या हो गया भाई? जिस सुराख से चश्मे निकलते हैं उनसे गटर के पानी नहीं निकलते, और जिन सुराखों से, कराची में तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मिसाल समझाने की जरूरत ही नहीं है, हर सुराख से गटर का पानी निकल रहा है। तो कभी आपने देखा चश्मे उबलते हुए कराची में? तो जिस दिल में दुनियाए मुर्दार के गटर का पानी उबलता हो, उस दिल में अल्लाह की मोहब्बत के चश्मे नहीं फूट सकते। तो ये हजरत फरमाते थे, ये मिसाल सोचें। क्यों सोचें? आगे बता रहा हूं मैं। फिर एक और मिसाल सोचें, और ये हमारे सब अकाबिर बताते रहे हैं, सिर्फ हमारे हजरत की बात नहीं है। दूसरी क्या मिसाल? कि जब सफेद कपड़ों को नील लगाया जाता है उसमें चमक पैदा करने के लिए, तो पहले मैल कुचैल को साफ किया जाता है, डायरेक्ट नील नहीं लगा दिया जाता वरना अजीब सा लगेगा। पहले उसका मैल उतारा जाता है, उसके बाद उसमें ब्राइटनेस पैदा करने के लिए, अट्रैक्शन पैदा करने के लिए, उस गंद और मैल कुचैल को दूर करने के बाद फिर उसको नील के पानी में डुबोया जाता है। फिर कैसा उजला उजला और चमकता हुआ नजर आता है वो। तो जब तक दिल में अल्लाह के गैर की मोहब्बत का गंद साफ नहीं होगा, अल्लाह की मोहब्बत के नील से दिल चमकदार नहीं होगा। यहां तक खोपड़ी शरीफ में बात आ गई होगी मेरा ख्याल है। फिर हज़रत फरमाते थे फिर उसके बाद क्या करना है? अभी तो ये सोचना है ना, सोचने के बाद क्या करना है? फिर उसके बाद किबला रुख बैठ के ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रब लगानी है। आप लोग ये काम ना शुरू कर दें, वजह मैं बताऊंगा आखिर में। ला इलाहा करते हुए क्या करना है? दाएं तरफ सर को लेके जाना है, और तवज्जो ये करनी है कि दिल से ला इलाहा का मतलब कोई माबूद नहीं, कोई महबूब नहीं, कोई भी नहीं है। दिल से क्या करना है? सबको निकाल के बाहर, इल्लल्लाह। फिर वापस गर्दन को लाना है और दिल पे चोट मारनी है, किसकी? इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा
इल्ला अल्लाह, कोई नहीं है सिर्फ कौन है, अल्लाह। तो उस कोई नहीं में ना ये सारा गंद निकालना है। ये गाड़ी भी नहीं है, ये बंगला भी नहीं है, ये पैसा जिस पे रालें टपकती रहती हैं हर वक्त, और किसी को कोई माशूक हो उसको भी निकाल दो इसी बहाने, मौका अच्छा है। पागल हो रहा है उसके पीछे, अपनी सेहत खराब कर रहा है, अपना ईमान खराब कर रहा है। तो ला इलाहा दिल से बाहर, इल्ला अल्लाह सिर्फ कौन, अल्लाह। जो बार बार ये जिक्र होता है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 आहिस्ता आहिस्ता जहन बनना शुरू कि मेरा माबूद और मेरा महबूब कौन है, इल्लल्लाह, बस अल्लाह है। इस पे मेरा ख्याल है किसी को इल्मी लिहाज से इश्काल हो सकता है, भाई इस हदीस, इस जिक्र का और इस स्टाइल का कुरान और सुन्नत में कोई सबूत, इस जिक्र का तो है ला इलाहा इल्लल्लाह का, इस स्टाइल का तो कोई सबूत नहीं है। तो खूब समझ लें कि बतौर इलाज जब कोई चीज की जाती है ना, इसको तसव्वुफ में शगल कहा जाता है। एक होता है जिक्र, एक होता है शगल। तो जो बतौर इलाज के जो चीज की जाती है, माइंड बनाने के लिए की जाती है, उसके लिए सबूत की जरूरत नहीं होती, उसके लिए सबूत की जरूरत नहीं होती। इसको सुन्नत अगर कोई समझेगा तो फिर क्या है, फिर ये बिदअत अमल है भाई। कुरान और सुन्नत से इस अंदाज का कोई सबूत नहीं है। लेकिन एक चीज तजर्बे से साबित हो जाएगा, इसका फायदा हो रहा है, और फायदा हो के वो चीज हासिल हो रही है जो अल्लाह चाहता है, तो फिर उसके लिए सबूत की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर ये इज्तिमाई सतह पे लोगों को बुला बुला के ये सेटअप शुरू हो जाए ना, तो फिर ये बिदअत का जरिया होने की वजह से क्या होगा, फिर नाजायज हो। तो आप ये काम ना करें, कोई बिदअत ना बन जाए नहीं, लेकिन एक काम आप लाजमी कर लें, जो मैंने इतना लंबा चौड़ा आपको ये पूरा तरीका बताया ना, आप ये ना करें यूं यूं गर्दन, बाज लोगों के फरमा भी टेढ़ा हो जाता है इससे, यूं यूं करने के बाद फिर उठ ही नहीं पा रहे ना, वो वैसे ही हो गया। तो ये काम ना करें, बिदअत का कोई जरिया ना बन जाए। जब तक किसी शेख से बाकायदा इस्लाही ताल्लुक ना हो और उसकी हिदायत और रहनुमाई ना हो, खुद से ये काम ना करें। ऐसी चीजों से बिदअतें फिर फैलती हैं सोसाइटी में। तो आपने क्या करना है, अल्लाह से ताल्लुक बहाल करना है ना, तो उसके मैं तरीके बता रहा हूँ आप। रोजाना सुबह और शाम में ला इलाहा इल्लल्लाह के जिक्र का मामूल बनाना है। 10 दफा कम से, देखो तबलीग वाले तस्बीह बताते हैं, तीसरा कलमा 100 दफा, 100 दफा इस्तिगफार, 100 दफा दुरूद शरीफ, सुबह भी और शाम भी। असल तो ये है, क्योंकि तीसरे कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह खुद ब खुद आ गया है। मैं उससे भी आसान पैकेज बता रहा हूं। असल तो वो है जो तबलीग वाले बताते हैं, मैं क्या बता रहा हूं उससे भी, कि यार वो नहीं होता तो ला इलाहा इल्लल्लाह बीच में से निकाल लो ना, इसी का वजीफा पढ़ लो, इसी को पाबंदी से पढ़ लो। तो जितने यहाँ मर्द और खवातीन आज बयान सुनने के लिए आए हैं, आज से आज़म करें कि हमने रोजाना कम से कम 100 मरतबा सुबह और 100 मरतबा शाम ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करना है। अच्छा, जिक्र में असल ये है कि आहिस्ता आवाज से किया जाए। जहरन जिक्र को शरीयत ने पसंद नहीं किया, लेकिन अगर दिल लगाने के लिए, माना और मफहूम को का तस्वुर दिमाग में बिठाने के लिए कोई हल्की आवाज से जहर कर लेता है, हल्की आवाज से, बहुत शोर शराबा ना हो, तो इसमें भी कोई हरज नहीं है। तो आपने क्या करना है, ये 2 मिसालें सुबह सोचनी है, सुबह के वक्त कर लें और शाम के वक्त कर लें। बैठे किबला रुख होके 10 दफा इस्तिगफार, अपने गुनाहों को याद करके 10 दफा दुरूद शरीफ पढ़ लिया, उसके बाद हल्की आवाज में ला इलाहा मजे ले लेके जिक्र करना है। तरखाना नहीं है, 100 दफा नहीं हो रहा ना, 50 दफा कर लो। वो काम जो थोड़ा हो, पाबंदी के साथ हो, अल्लाह को ज्यादा महबूब है उस काम से जो बहुत ज्यादा हो, लेकिन उसकी पाबंदी ना हो। तो क्या करना है, हल्की आवाज से ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, और तसव्वुर